Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 9th of July 2020, Thursday. Let's start with Business Standard Daily News Analysis. Inspiration of the day is: never throughout history has a man who lived a life of ease left a name worth remembering. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. Equity mutual fund flows slipped to 4-year low in June. जून के मंथ में इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में जो नेट इनफ्लो रहा है दैट वाज अबाउट 240 करोड़ and this number is worst, or this month is worst in comparison to last 4 years, even though the market is gaining at a rate of 7% during this month. मार्केट में 7% का ग्रोथ रजिस्टर किया गया है इस मंथ में. गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं, उन्होंने भी हायर इनफ्लो रजिस्टर किया है. इसके बावजूद भी जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की स्कीम है उनका नेट इनफ्लो जून के मंथ में ड्रॉप हुआ है एंड दैट ड्रॉप इज हाईएस्ट सिंस लास्ट 4 इयर्स. और एक्सपर्ट इसके बहुत सारे रीजंस बता रहे हैं. सम एक्सपर्ट आर सेइंग दैट दिस इज बेसिकली द रिस्क अवर्जन फिनोमिना अमंग द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स. नाउ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स डू नॉट वांट टू बियर even a minimum risk. That is why exchange in gold is also increased. Shaky economic conditions are actually inducing the mutual fund investors to get the higher redemptions or go for redemptions for their schemes. According to the industry experts, this cash inflow or the net inflow is dropped because of the higher redemption rates by institutional investors as well as individual investors. Why? Because investors are now very cautious about the economic situation because of the amid economic disruption caused by COVID-19 pandemic. और अगर हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का जो रिडम्पशन रहा है वो बहुत ही बिग अमाउंट पर रहा है, स्पेशली लार्ज और मल्टी कैप फंड्स में डेटा जो है वो स्क्यूड है. मार्च 23 के बाद से मार्केट रिबाउंड किया है, रिबाउंड बैक किया है एंड द गेन इज 40%. बट इंस्टेड ऑफ दिस गेन इन मार्केट द नेट inflow in mutual fund equity schemes has been taken a hit, and experts are clearly indicating that because of the risk aversion and flight of safety among individual investors, mutual funds have seen this decreased net inflow. And if we see the mutual fund trend into the graph, then we can see that's highly shaky in nature. Since March 2016 to June 2020, this is the lowest net inflow in mutual fund equity schemes. Now look at into the article number 1. Tata's in talk to buy Air Asia, India stake at discount. टाटा ग्रुप और एयर एशिया बरहाट का जो जॉइंट वेंचर इंडियन एयरलाइंस में था, इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में था. नाउ टाटा ग्रुप इज इन टॉक और इज इन नेगोशिएशन विद एयर एशिया टू बाय इट्स एयर एशियाज बरहाट स्टेक इन इंडियन एयरलाइंस. अगर हम टाटा के इंटरेस्ट की बात करें तो टाटा का इंटरेस्ट एयर एशिया के जो इंडियन एयरलाइन है उसमें टाटा का इंटरेस्ट बहुत पहले से था. ये नेगोशिएशन बहुत पहले से टाटा ग्रुप और एयर एशिया में चल रहा था. बट एयर एशिया का अपना पॉइंट ये था कि वो उस एयर एशिया की जो उसकी इंडियन यूनिट है उसका वैल्यूएशन पे लेकर के कुछ नेगोशिएशन नहीं स्टैब्लिश हो पा रहा था. एयर एशिया हायर वैल्यूएशन के लिए negotiate कर रहा था. टाटा ग्रुप was not ready at that time. But after COVID-19, as we all know, the plight of airlines is not very good. Aviation industry is the worst hit industry by this COVID-19 induced pandemic, and because of that the valuation of every airline, not only Air Asia, the valuation of every airline is at its lowest. So with Air Asia, now Air Asia is in hurry, but Tata Group or the Tata Sons are is in patience mode for this acquisition process. And if we talk about other investors of Air Asia, so Tata Group is likely to tie up with the other financial investors as well, and it is interested to acquire its Malaysian partner 49% stake in Air Asia. Currently, Tata owns 51% in airline and have the right of first refusal in acquiring the shares of its
पार्टनर। हालांकि एयर एशिया की तरफ से, टाटा सन्स की तरफ से इसका कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, बट एज पर द न्यूज़ इस समय एयर एशिया हरी में है कि उसका जो स्टेक है वो टाटा या कोई और फाइनेंशियल इन्वेस्टर खरीद ले। बट नाउ टाटा इज इन पेशेंस पोजिशन बिकॉज Tata company knows, or Tata Sons knows, that there is a lowest valuation for all aviation companies including Air Asia as well. So this deal may be at a discounted price and may be very beneficial for Tata Sons or Tata Group. तो हो सकता है फ्यूचर में अगर ये डील फाइनलाइज हो जाती है तो हम टाटा को एक मेजर शेयर होल्डर के फॉर्म में देखेंगे एयर एशिया में। हालांकि टाटा पहले भी एविएशन की इंडस्ट्री में वर्क कर चुकी है। और अगर हम देखें डिफरेंट जो मेजर एविएशन कंपनीज हैं उनका शेयर प्राइजेस कोविड के सिचुएशन में क्या रहा है, मार्केट कैप में क्या सिचुएशन है, तो आप देख सकते हैं कि जितने भी ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं एविएशन कंपनीज, इन सब का जो चेंज इन शेयर प्राइस है दैट इज नेगेटिव, एंड बिकॉज ऑफ दैट द मार्केट कैप इज ऑल्सो वेरी लो। तो इस समय मैक्सिमम एविएशन कंपनीज अपनी लो वैल्यूएशन की स्टेज पर हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि कोविड-19 की वजह से बहुत सारी नेशनल और इंटरनेशनल फ्लाइट्स बहुत लंबे टाइम के लिए बैन भी रही और अभी कुछ ही डोमेस्टिक फ्लाइट्स को ऑपरेट किया गया, इंटरनेशनल फ्लाइट्स अभी भी ऑपरेट नहीं हुई। दिस सिचुएशन इज नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो विद अदर कंट्रीज एज वेल। तो आप देख सकते हैं कि जितनी भी मेजर ग्लोबल एविएशन कंपनीज हैं, ऑल कंपनीज हैव देयर नेगेटिव शेयर प्राइस ग्रोथ। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3, गवर्नमेंट क्लियर्स अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर माइग्रेंट्स। वेडनेसडे को कैबिनेट ने आत्मनिर्भर भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत एक और स्कीम को परमिशन या अप्रूवल दे दिया है। इन दैट स्कीम गवर्नमेंट इज गोइंग टू डेवलप द अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स ARHCs फॉर अर्बन माइग्रेंट एंड poor section of the society, and that will be the sub scheme under प्रधानमंत्री आवास योजना। और ऑलरेडी इस स्कीम का अनाउंसमेंट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने मई में आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के अंडर कर दिया था। अब कल कैबिनेट की मीटिंग में इस स्कीम को अप्रूवल मिल गया है। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी डेट्स, अनाउंसमेंट की डेट्स को एक्सटेंड किया था अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर भारत, जिसमें ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पेंशन फंड का कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट इंक्रीज करेगी, कुकिंग गैस जो बेनिफिशियरीज हैं अंडर उज्ज्वला योजना उनका एक्सपेंशन करेगी, फ्री फूड ग्रेन बेनिफिशियरीज जो हैं उनका एक्सटेंशन करेगी। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि नवंबर तक जो फ्री फूड ग्रेन्स हैं उस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया है ऑलरेडी गवर्नमेंट ने। अब गवर्नमेंट ने रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस के डेवलपमेंट की स्कीम को भी अप्रूव कर दिया है। अंडर दिस स्कीम नंबर ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक एंटिटीज will be invited to participate। कैसे पार्टिसिपेट करने के लिए इन्वाइट किया जाएगा उनको? पहले तो गवर्नमेंट के पास जितने भी एग्जिस्टिंग हाउसेस पड़े हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस पड़े हुए हैं जो कि सेल आउट नहीं हुए हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं रियल स्टेट भी इस समय बहुत ज़्यादा शेकी कंडीशन में है, रियल सेक्टर भी बहुत ज़्यादा शेकी कंडीशन में है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट या बहुत ग्रोथ नहीं हो रही है रियल स्टेट में। और ये सिर्फ कोविड-19 की सिचुएशन में ही नहीं है, ये कोविड-19 से पहले भी था, जस्ट लाइक ऑटोमोबाइल। तो बहुत सारे जो गवर्नमेंट फंडेड हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस थे, जो हमारे डेवलपमेंट अथॉरिटी या आवास विकास के जितने बहुत सारे हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस थे वो अभी तक एम्प्टी पड़े। तो गवर्नमेंट अब उन सारे हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस को ARHCs में कन्वर्ट करने के लिए एग्रीमेंट साइन करने जा रही है। दैट एग्रीमेंट विल बी ऑफ 25 ईयर्स और स्पेशल इंसेंटिव्स मिलेगा इसके अंडर प्राइवेट एंड पब्लिक एंटिटीज दोनों को। इट मीन्स जो गवर्नमेंट ओन्ड या गवर्नमेंट फंडेड हाउसिंग कॉम्प्लेक्स हैं उनको तो अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो प्राइवेट एंटिटीज हैं वो भी अपने अवेलेबल वैकेंट लैंड को अगर 25 सालों के लिए चाहें तो यूज़ करके अफोर्डेबल हाउसेस को में कन्वर्ट कर सकती हैं। अंडर दैट स्कीम ऑल प्राइवेट एंटिटीज दोज will participate will get the special incentive by government। तो इस स्कीम से गवर्नमेंट ने प्राइवेट और पब्लिक एंटिटीज दोनों को ही इनवाइट किया है कि वो अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस का डेवलपमेंट करें फॉर स्पेशली फॉर अर्बन माइग्रेंट एंड पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी।
स्टूडेंट याद रखेंगे, दिस इज अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस। ये रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस होंगे, ये अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स में जो परमानेंट हाउसेज या होम्स दिए जाते हैं वो नहीं है, दैट इज रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड दैट कम्स अंडर एज अ सब स्कीम इन प्रधानमंत्री आवास योजना। तो यहाँ पर अब कुछ स्कीम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक प्रधानमंत्री आवास योजना, दूसरी अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस स्कीम। तो इसको थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़ लेंगे, हालांकि इसमें कुछ नहीं है, बहुत ईजी है ये। एंड एज वी ऑल नो, अंडर दिस आत्मनिर्भर पैकेज गवर्नमेंट ने बहुत सारे अदर अनाउंसमेंट भी किए हैं। अगर अदर अनाउंसमेंट की बात करें तो फ्री पल्सेस राइस वीट्स बेनिफिशियरी को जो नवंबर तक गवर्नमेंट में इंक्रीज कर दिया है। अब जो गवर्नमेंट के वैकेंट हाउसेस हैं, प्राइवेट एंटिटीज के जो वैकेंट हाउसेस कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनको अफोर्डेबल रेंटल हाउसेस कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने को भी गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है। गवर्नमेंट ने ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन को भी एक्सटेंड किया था 3 महीने के लिए, जिसमें एम्प्लॉयज़ का भी और एम्प्लॉयर्स का दोनों का ही शेयर का एक्सटेंशन हुआ था। फ्री गैस रिफिलिंग अंडर डीबीटी क्रेडिट को भी गवर्नमेंट ने सितंबर तक एक्सटेंड कर दिया है। तो अंडर दिस स्कीम गवर्नमेंट इज नाउ providing numbers of benefits to migrant and poor section of the society। इससे क्या होगा, इन सब स्कीम से सोशल सपोर्ट तो मिलेगा ही एक सेक्शन को जो कि पुअर है, माइग्रेंट है, मार्जिनलाइज सेक्शन है। ऑन द अदर हैंड इकोनॉमी को भी रिवाइव करने में आसानी रहेगी, इकोनॉमिक रिवाइवल भी ईजी होगा। कैसे? अगर गवर्नमेंट आप देखें तो इन सब फॉर्म में गवर्नमेंट कहीं ना कहीं आप बेसिक एमिनिटीज को फुलफिल कर रही है। ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग द कैश इन हैंड्स। अगर गैस, फूड ग्रेन्स, हाउसिंग, इस तरह की फैसिलिटीज को गवर्नमेंट प्रोवाइड करे तो इन पे होने वाला जो एक्सपेंडिचर है, इंडिविजुअल प्राइवेट एक्सपेंडिचर है, वो सेव होगा। अगर वो सेव होगा तो इंडिविजुअल्स या पब्लिक के हाथ में मनी रहेगा तो डिमांड ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। दैट इज वाई गवर्नमेंट इज कंटिन्यूअसली एक्सटेंडिंग ऑल दी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। तो इस तरह की स्कीम्स के डुअल एडवांटेजेस होते हैं। अगर हम बात करें डुअल एडवांटेजेस कौन कौन से, एक तो आप मार्जिनलाइज सेक्शन, बीपीएल सेक्शन को सपोर्ट दे रहे हैं, उनको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका मेंटेन कर रहे हैं, उनका सर्वाइवल इंश्योर कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड इकोनॉमी में डिमांड रिवाइवल भी हो रहा है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 6। बजट ब्लो आउट में सी आरबीआई रिजॉर्ट टू डायरेक्ट फाइनेंसिंग। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स को अंडर आत्मनिर्भर भारत बहुत सारी स्कीम्स को एक्सटेंड कर दिया है। जुलाई स्कीम को एक्सटेंड कर दिया, ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन को एक्सटेंड कर दिया, अफोर्डेबल हाउसिंग, फूड ग्रेन। अब इन सब स्कीम्स पर गवर्नमेंट को इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को रिवेन्यू चाहिए, बजट चाहिए, मनी चाहिए, फंड अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, तभी ये सारी स्कीम इम्प्लीमेंट हो पाएंगी। ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट ने इस फाइनेंशियल ईयर में जो भी बजट किया था, उस बजट में जितना रिवेन्यू प्लान किया था, वो रिवेन्यू अब कलेक्शन आप देख रहे हैं, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, जीएसटी कलेक्शन सब फॉल किया है पिछले 2-3 महीनों में, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट के पास रिवेन्यू होना चाहिए था, बजटेड रिवेन्यू जो गवर्नमेंट ने बजट में प्लान किया था कि इतना रिवेन्यू आएगा, दैट रिवेन्यू इज रनिंग आउट एंड बिकॉज ऑफ दैट गवर्नमेंट इज आउट ऑफ फंड और हैज अ वेरी लिटिल मनी अवेलेबल टू monetize all those social security schemes and meet out the expenditure of COVID-19 related health infrastructure facilities, जिसकी वजह से अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि गवर्नमेंट बहुत जल्दी ही आरबीआई का डोर नॉक करने वाली है फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट, और उस सपोर्ट में आरबीआई गवर्नमेंट को डायरेक्टली फाइनेंस करेगी बाय बाइंग द सोवरेन बॉन्ड डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो अब गवर्नमेंट के पास रिवेन्यू कलेक्शन फॉल कर रहा है, रिवेन्यू है नहीं, ऑन द अदर हैंड एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, तो उस एक्सपेंडिचर को मीट आउट करने के लिए गवर्नमेंट आरबीआई के पास जाएगी फॉर फाइनेंसिंग। तो अब 2 ऑप्शन होंगे गवर्नमेंट के पास, आइदर टू सेल देयर सोवरेन बॉन्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू आरबीआई, जो आरबीआई खरीदेगा और गवर्नमेंट को पैसा देगा, और गवर्नमेंट हैज अ ऑप्शन टू गेट द डिविडेंड फ्रॉम द आरबीआई बैक, जो कि आरबीआई ने कलेक्ट किया है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को होल्ड करने से पिछले कई सालों से, या पिछले 1 ईयर में जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई ने होल्ड करी थी, बैंक गवर्नमेंट से खरीदी थी, उस पर गवर्नमेंट जो डिविडेंड देती है, उस डिविडेंड को अब आरबीआई बैक आउट करेगा या बैक देगा गवर्नमेंट को इन ऑर्डर टू सप्लीमेंट द रिवेन्यू।
ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदता है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पर कुछ उसको मैच्योरिटी अमाउंट इंटरेस्ट मिलता है, उस इंटरेस्ट में इंटरेस्ट हो सकते हैं या प्रॉफिट अर्न करता है आरबीआई, उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट एज अ डिविडेंड गवर्नमेंट को वापस किया जाता है फॉर प्रॉफिट शेयरिंग पर्पस। तो गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन है, या तो नए सोवरेन बॉन्ड इशू करे आरबीआई को या डिविडेंड की डिमांड करे आरबीआई से इन ऑर्डर टू सप्लीमेंट इट्स रेवेन्यू और फाइनेंस और मोनेटाइज इट्स सोशल सिक्योरिटी पॉलिसीज। करंटली गवर्नमेंट इज फेसिंग 7% of budget deficit, and that is widest since 2 decades। पिछले 20 सालों में ये सबसे बड़ा और वाइड बजट डेफिसिट है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जीडीपी का 7% बजट डेफिसिट फेस कर रही है, एंड दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। 7% ऑफ जीडीपी इज अ ह्यूज अमाउंट। Therefore, government is left with one option only, that to finance the or monetize the deficit by knocking the door of RBI. And RBI is also in support of monetizing this government deficit or budget deficit. Why? Because RBI knows that if a government wants to create that demand, government has to spend, whether governments have revenue or not, but government expenditure is very much important if government really want to increase the demand, and demand revival is one of the prerequisite for any economy to get the sharp recovery or even the economic recovery। और अगर हम पिछले 2016 से देखें गवर्नमेंट ने कितनी फाइनेंसिंग करी है, कितना फिस्कल डेफिसिट रहा है, जीडीपी ग्रोथ क्या रही है, बोरोइंग्स गवर्नमेंट ने कितनी आरबीआई से करी है, तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं 2016 से लेकर 2021 तक का डेटा है। 6%, 6%, 5.8%, 6.1, 7.1 एंड 12.0। तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस फाइनेंशियल ईयर 21 में अप्रॉक्सीमेटली 12.0 ट्रिलियन की बोरोइंग आरबीआई से कर सकती है। एंड दिस ब्लैक लाइन इंडिकेट्स अ फिस्कल डेफिसिट परसेंटेज ऑफ जीडीपी। फिस्कल डेफिसिट क्या आ रहा है, तो इस फाइनेंशियल ईयर में, चूंकि अभी ये फाइनेंशियल ईयर पूरा खत्म नहीं हुआ, तो इसमें आपको लो दिख रहा होगा, बट एक्सपर्ट आर सेइंग दैट दिस इज गोइंग टू बी हायर इन कंपैरिजन टू ऑल प्रीवियस ईयर्स। हालांकि अगर प्रीवियस ट्रेंड देखें तो कहीं ना कहीं डेफिसिट थोड़ा सा फॉल होता हुआ दिखेगा, बट दैट फॉल इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, एंड दैट डैश लाइन इज ऑल अबाउट जीडीपी ग्रोथ। तो ये जीडीपी ग्रोथ की लाइन है, जो कि आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 20 से 21 के बीच में शार्पली फॉल करी है, और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस बार ये निगेटिव टेरिटरी में आएगी। माइंड इट स्टूडेंट, ये 0 पॉइंट यहाँ पर है, ये 0 पॉइंट यहाँ नहीं है, ये 0 पॉइंट यहाँ है इसका। तो आप देख सकते हैं कि इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि जो जीडीपी है वो नेगेटिव टेरिटरी में फॉल करेगी। आरबीआई का प्रोजेक्शन भी यही है, और हमारी जितनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उन सब का भी प्रोजेक्शन यही है। तो फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ता हुआ, जीडीपी ग्रोथ भी गिरती हुई दिख रही है, और गवर्नमेंट की बोरोइंग्स भी हमें बढ़ती हुई दिख रही हैं अपकमिंग मंथ्स इन फाइनेंशियल ईयर 21। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 गिवन ऑन पेज नंबर 10। ट्रबल फॉर एम्बेसी REIT एज IT फर्म्स कट रियलिटी स्पेंडिंग। इस कोविड-19 की सिचुएशन में बेसिकली जो IT और ITES कंपनीज है, मैक्सिमम कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम दिया है। इवन इफ वी लीव द IT कंपनीज, जो अदर इंडस्ट्रीज हैं वो भी वर्क फ्रॉम होम के ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रही हैं, बट IT कंपनीज जो हैं उन्होंने मैक्सिमम वर्क फ्रॉम होम को यूटिलाइज किया, और कोविड-19 की सिचुएशन में अपने वर्क को रिज्यूम करने के लिए अपने मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन ऑफर किया है। और कंपनीज ये भी अब IT कंपनीज अब ये भी एंटिसिपेट कर रही हैं कि अगर ये कोविड-19 की सिचुएशन ओवरकम हो भी जाती है तो ये वर्क फ्रॉम होम का जो न्यू नॉर्मल आया है ये मेंटेन रहेगा, और कंपनीज इसको मेंटेन रखेंगी फॉर परमानेंट पर्पस। जैसा कि टाटा ने भी डिक्लेयर किया था कि फाइनेंशियल ईयर 25 तक 75% एम्प्लॉयज़ जो टाटा के होंगे वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे। अब इस वर्क फ्रॉम होम की वजह से हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हो रहे हैं कंपनीज को। बेसिकली उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्पेंडिंग है, ओवरहेड स्पेंडिंग है, वो बहुत रिड्यूस हुई है। लेकिन अगर हम बात करें इस इंफ्रास्ट्रक्चर और ओवरहेड स्पेंडिंग की, अगर ये रिड्यूस हुई तो इसका इम्पैक्ट किसी और सेक्टर पर भी
पड़ा है। अगर हम ध्यान से देखें तो एम्बेसी का जो ऑफिस पार्क है, REIT, एम्बेसी REIT भी बोलते हैं उसको, उसने स्टॉक मार्केट में अंडर परफॉर्म किया है पिछले 3 मंथ्स में, और जो निगेटिव रिटर्न 2% का रजिस्टर किया है इन कंपैरिजन टू इट्स पीयर इंडेक्स। अगर BSE रियलिटी की बात करें तो BSE रियलिटी का जो ग्रोथ रेट रहा है वो 17% का रहा है। ऑन द अदर हैंड एम्बेसी REIT का जो रिटर्न है वो -2% रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? अगर रियलिटी स्टेट या रियल स्टेट में अगर डिमांड फॉल कर रही है, कंपनीज ऑफिस वैकेंट कर रही हैं क्योंकि उन्होंने अपने मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी दे रखी है, तो वो फिजिकल प्रेमाइसेस को जो ऑफिस उन्होंने रेंट पर ले रखे थे या जो खरीद रखे थे उन सबको वैकेंट कर रही हैं, अपना शेयर बेच रही हैं। तो उसका इम्पैक्ट BSE रियलिटी पर कम क्यों दिखा, एम्बेसी पार्क जो REIT है उस पर क्यों दिखा, उसने क्यों निगेटिव रिटर्न रजिस्टर्ड किया सिंस लास्ट 3 मंथ्स? तो एक्सपर्ट का ये कहना है कि जो अंडर परफॉर्मेंस हुई है एम्बेसी REIT की वो इसलिए हुए क्योंकि एम्बेसी REIT के जो मेजर जो शेयर होल्डर्स हैं, जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, जस्ट लाइक IBM, ब्लैकस्टोन, ये सारे शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स अब अपना अपना शेयर सेल आउट कर रहे हैं क्योंकि इन कंपनीज को अभी रियलाइज हो गया है कि अभी फिलहाल के लिए रियल स्टेट स्पेशली इन केस ऑफ REIT बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट्स नहीं होंगे क्योंकि मैक्सिमम कंपनीज अब वर्क फ्रॉम होम ऑप्ट कर रही हैं। और अगर हम REIT की बात करें तो REIT का जो मेजर स्टेक होल्डर है या जो मेजर शेयर हैं वो IT सेक्टर की कंपनीज ही हेल्ड करती हैं। BSE रियलिटी के केस में ऐसा नहीं है। इसीलिए, और अगर हम देखें तो IT और ITES कंपनीज ने ही मैक्सिमम अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम दिया है क्योंकि इसी सेक्टर में वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा पॉसिबल है, फीजिबल है, जिसकी वजह से REIT में जो फॉल है वो निगेटिव देखा गया है, जबकि BSE रियलिटी ने 17% का गेन रजिस्टर्ड किया है इनटू रियलिटी इंडेक्स। रिसेंटली पार्शियल स्टेक सेल किया है एम्बेसी REIT के स्पॉन्सर ब्लैकस्टोन, जो कि एक बहुत सिग्निफिकेंट इन्वेस्टर था REIT में, उसने अपना पार्शियल स्टेक सेल आउट कर दिया है अंडर रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसको REIT भी बोलते हैं, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा डाउन हुए। जो मेजर क्लाइंट्स हैं उन्होंने भी अपनी ऑफिस प्रेजेंस को कम कर दिया है आफ्टर कोविड-19 पेंडेमिक। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट को डाउट होगा कि REIT क्या है, तो जल्दी से देख लेते हैं कि एक्चुअली REIT है क्या। हो सकता है आपसे एग्जाम पे इसका फुल फॉर्म पूछा जा सके। मैंने PDF में थोड़ा सा डिटेल में लिख दिया है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं खुद से। बेसिकली REIT स्टैंड्स फॉर रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसमें क्या होता है? इट इज़ अ टैक्स एफिशिएंट व्हीकल, और टैक्स एफिशिएंट व्हीकल होता है जिसमें जो रियल स्टेट के ओनर्स होते हैं दे पूल देयर इनकम जनरेटिंग असेट्स इनटू वन पोर्टफोलियो and allow the investors to buy the ownership into that portfolio in terms of real estate assets by buying the equity। तो जो रियल स्टेट के ओनर्स होते हैं वो एक पूल इनकम जनरेटिंग असेट्स जनरेट करते हैं, पोर्टफोलियो बनाते हैं जिसमें उनके जितने भी इनकम जनरेटिंग असेट्स हैं उनकी पूलिंग करते हैं। इसके बाद जो आउटसाइड इन्वेस्टर्स होते हैं उनको अलाउ करते हैं कि वो इक्विटी के फॉर्म में इन्वेस्ट करें और उस जो इनकम जनरेटिंग असेट्स हैं रियल स्टेट के उनकी ओनरशिप खरीदें। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो ऑफिस प्रमाइसेस बनाती हैं जहाँ उनके एम्प्लॉयज़ आते हैं, काम करते हैं, तो वो कंपनीज क्या करती हैं, उस पर्टिकुलर ट्रस्ट में इन्वेस्ट करती हैं इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, और कुछ पार्ट ऑफिस का या रियल स्टेट का वो एज अ ओनर एक्वायर कर लेती हैं। तो इसको बोलते हैं रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ऐसा नहीं है कि ये इंडिया में ही फिनोमिना है, इंडिया में ही पहली बार आया है, नहीं, इट्स नॉट अ वेरी न्यू फिनोमिना। अगर हम बात करें फिनोमिना कब स्टार्ट हो तो 1960 में ये फिनोमिना स्टार्ट हुआ था USA में, जहां पर छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ किया गया था कि छोटे छोटे इन्वेस्टर्स आएँ और वो इस इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में पार्टिसिपेट करें और वो अपना कॉमर्शियल ऑफिस खुद खरीद सकें बाय पार्टिसिपेटिंग इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी। तो होता क्या, जो ओनर्स हैं जिनके पास ज़मीन है या रियल स्टेट है वो एक पूल जनरेट करते हैं, पोर्टफोलियो जनरेट करते हैं और कंपनीज को इन्वाइट करते हैं कि वो उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इक्विटी के फॉर्म में ओनरशिप ले सकती। कंपनीज इक्विटी में इन्वेस्ट करती हैं और उनको सर्टेन अमाउंट को ऑफिस प्रमाइसेस
फिजिकल प्रेमाइसेस अलॉट हो जाता है। बट अब हुआ क्या, अब हो ये रहा है कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारी जो कंपनीज हैं उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दिया है और ऐसा जो एक्सपर्ट हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में बहुत जल्दी ये वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी खत्म होने वाली नहीं है। इवन आईटी और आईटी कंपनीज ने अब ये रियलाइज कर लिया है कि वर्क फ्रॉम होम से उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा ओवरहेड कॉस्ट, रियल स्टेट की कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट जो है वो डिक्रीज कर रही है। तो अब बहुत सारी जो आईटी फर्म्स हैं वो वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी को कोविड-19 के बाद भी कंटिन्यू रखेंगी, जिसकी वजह से अब उनकी जो ऑफिस की रिक्वायरमेंट है वो रिड्यूस कर गई है। इसीलिए ब्लैकस्टोन जो स्पॉन्सर था RIET का, एम्बेसी ग्रुप का जो REIT है उसका जो मेजर स्पॉन्सर था वो ब्लैकस्टोन था, उसने अपना एक पार्शियल स्टेक सेल आउट कर दिया है। जो मेजर क्लाइंट्स हैं जैसे IBM, कॉग्निजेंट, ये सारी जो कंपनी जो मेजर पोर्ट या मेजर स्टेक होल्ड करती थी REIT में, वो भी अब अपनी ऑफिस प्रेजेंस को रिड्यूस कर रही हैं, जिसकी वजह से जो इंडेक्स है REIT का वो फॉल किया है 2% निगेटिव टेरिटरी में। जैसा कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जो REIT के क्लाइंट है वो मैक्सिमम IT सेक्टर से हैं और IT सेक्टर ने ही इस कोविड-19 की सिचुएशन में सबसे ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम को यूटिलाइज किया है। ब्लैकस्टोन का 55% स्टेक था। इससे पहले अगर हम बात करें तो एम्बेसी ग्रुप का 70% स्टेक था, जिसको ब्लैकस्टोन ने खरीद लिया था। 55% स्पॉन्सर स्टेक करके वो स्पॉन्सर हो गया था। अब ब्लैकस्टोन भी धीरे धीरे जो इन्वेस्टमेंट था उसका REIT में उसको सेल आउट कर रहा है, अपना जो शेयर है उसको बेच रहा है, जिसको देखते हुए अब REIT का जो इंडेक्स है, मार्केट परफॉर्मेंस है, वो फॉल कर रही है इन कंपैरिजन टू इट्स पीयर इंडेक्सेस जस्ट लाइक BSE रियलिटी। BSE रियलिटी में इसीलिए इतना फॉल देखने को नहीं मिला क्योंकि उसमें के जो मेजर क्लाइंट है वो IT सेक्टर से नहीं है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ REIT दैट यू कैन गो विद वंस, एंड ऑल दिस इज द परफॉर्मेंस ऑफ एम्बेसी ऑफिस पार्क, REIT एंड सेंसेक्स इन 1 ईयर। जैसा कि हम देख रहे हैं कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है एंड दैट इज कंटिन्यूअसली अंडर प्रेशर बिकॉज ऑफ ओनली वन रीजन, दैट इज वर्क फ्रॉम होम। आप देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स। गूगल टैक्स मॉप अप ड्रॉप 30% इन Q1। 7 जुलाई लास्ट डेट थी गूगल टैक्स को फाइल करने की Q1 की, जैसा कि हम ऑलरेडी इस न्यूज को डिस्कस कर चुके हैं। तो एज पर द कलेक्शन रिसीव्ड, the equalization levy showed a muted collection in the first quarter of current financial year, that is financial year 21। और ये डिक्लाइन कितना रहा है? 30% कम कलेक्शन हुआ, 30% डिक्लाइन हुआ है कलेक्शन गूगल टैक्स का। जबकि अगर हम ध्यान से देखें तो इस बार इक्वलाइजेशन लेवी का जो एक्सपेंशन है वो बढ़ा दिया गया था। इसमें ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट कंपनीज के अलावा ई-कॉमर्स कंपनीज को भी इंक्लूड कर लिया गया था। इसके बावजूद भी 30% फॉल देखा गया है गूगल टैक्स के कलेक्शन में। इस बार अप्रॉक्सीमेटली 216 करोड़ का कलेक्शन हुआ, जो कि पिछले साल सेम पीरियड में या पिछले साल या पिछले फाइनेंशियल ईयर के Q1 में अप्रॉक्सीमेटली 309 करोड़ का कलेक्शन हुआ था। और सबसे ज़्यादा कलेक्शन बैंगलोर और हैदराबाद में देखा गया। अप्रॉक्सीमेटली इन दोनों ही सिटीज़ ने 92% का कलेक्शन रजिस्टर किया है पिछले साल के कंपैरिजन में। एंड एक्सपर्ट आर सेइंग दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सम अपवर्ड रिवीजन इन द नंबर्स बेस्ड ऑन द लास्ट मिनट पेमेंट बाय फॉरेन प्लेयर्स। तो हो सकता है अभी कुछ नंबर रिवीजन हो, बट अभी तक जो कलेक्शन का डेटा रहा है उसके अकॉर्डिंग 30% ड्रॉप हुआ है। और इस बार नंबर ऑफ कंपनीज जो फॉल की थी अंडर गूगल टैक्स रिजीम और इक्वलाइजेशन लेवी, उनका भी नंबर बढ़ गया। तो इस बार हमारी एडोब, उबर, यूडेमी, जूम, अस, एक्सपीडिया, अलीबाबा, ये सारी लिंक्डइन, ये सब भी अब इक्वलाइजेशन लेवी के कैटेगरी में फॉल कर रहे थे। इससे पहले सिर्फ ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट कंपनीज ही आती थी। गूगल टैक्स बहुत न्यूज़ में है स्टूडेंट, तो आप लोग उसको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ और एक वीडियो बना हुआ है स्पेशली फॉर गूगल टैक्स, तो आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़। गवर्नमेंट कॉल ऑफ मर्जर ऑफ 3 PSUs जनरल इंश्योरर्स। अभी रिसेंटली एक प्रपोजल आ रहा था जिसमें गवर्नमेंट एक प्रपोजल को कंसीडर कर रही थी कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, इन तीनों का मर्जर कर दिया जाए, जिससे कि एक जो एंटिटी बनेगी,
इन तीनों को मिलाकर के वो प्रॉफिटेबल एंटिटी होगी। बट अब गवर्नमेंट ने फिलहाल के लिए इन तीनों ही पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज का जो मर्जर का जो डिसीजन था उसको फिलहाल के लिए रोक दिया है। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि instead of going for merger, government will focus on making them more profitable entities. And for them, cabinet has approved the capital infusion of 12,450 crore for these 3 companies. तो फिलहाल के लिए गवर्नमेंट ने इनका मर्जर रोक दिया और इनमें कैपिटल इन्फ्यूजन के लिए मनी भी अलॉट कर दिया, सो दैट ऑल दीज कंपनीज कैन बी और ऑल दीज पब्लिक सेक्टर यूनिट्स कैन बी मेक प्रॉफिटेबल एंटिटीज। अब देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज। गवर्नमेंट मूव्स सुप्रीम कोर्ट ओवर एयरटेल जीएसटी रिफंड। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज करने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया है। Under this case, Delhi High Court has given the verdict and allowed the Bharti Airtel to claim goods and service tax refund worth rupees 923 crore। तो 923 करोड़ का जीएसटी का रिफंड एयरटेल ने क्लेम किया था, जिसको लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने एयरटेल के फेवर में जजमेंट दिया है। उस जजमेंट के अगेंस्ट अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में जा रही है दिल्ली हाई कोर्ट के इस डिसीजन को चैलेंज करने। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी ऑर्डर को रिटेन किया तो एयरटेल को इनपुट टैक्स क्रेडिट के फॉर्म में गवर्नमेंट को अप्रॉक्सीमेटली 393 करोड़ का जीएसटी रिफंड या इनपुट टैक्स क्रेडिट देना पड़ेगा, और जो एयरटेल के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा। रिलीफ किस लिए, अगर आपको याद हो तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया था फॉर AGR ड्यूज ऑन ऑल टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज। तो अगर एयरटेल ये सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस जीत जाता है तो एयरटेल के लिए इट विल बी द बिग रिलीफ। अब देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज। इंडियन एड इंडस्ट्री स्टार्ट शोइंग साइन ऑफ रिवाइवल। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के रिज्यूम होते हुए कोविड-19 के बाद जो शटडाउन कोविड-19 के ड्यूरेशन में जो शटडाउन हुआ था, उस शटडाउन के बाद जैसे ही इकोनॉमी ओपन हुई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिज्यूम हुई, उसी तरह इंडियन एड इंडस्ट्री ने भी अब रिवाइवल के साइन शो करना शुरू कर दिया है। एज पर एक्सपर्ट, टेलीविजन एंड डिजिटल एड्स अपने 40 और 60% प्री कोविड लेवल तक आ चुका है। दैट्स अ क्लियर इंडिकेशन दैट कंपनीज आर नाउ एंगेजिंग देमसेल्फ फॉर economic activities, now producing more and want to sell more। एडवर्टीजमेंट इंक्रीज कर रहा है, कंपनीज का एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बढ़ रही है, कंपनी एडवर्टीजमेंट में स्पेंड कर रही हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि कंपनीज प्रोडक्शन कर रही हैं, दे वांट टू सेल देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज, दे वांट टू इंड्यूस द डिमांड, जिसकी वजह से इकोनॉमिक रिवाइवल भी अच्छा होगा। और जो इंडियन एड इंडस्ट्री है उसने इसके साइन या रिवाइवल के साइन शो करने शुरू कर दिए। जैसा कि अगर हम ग्राफ में देखें तो अप्रैल और मई के मंथ में कितना था, देन जून, जुलाई, अगस्त, इस तरह से ये इंक्रीज होता हुआ आ रहा है। हर जो मंथ है उसमें एक्सपेंडिचर या आप बोल सकते हैं इंडियन एड इंडस्ट्री का जो रिकवरी रेट है वो इंक्रीज हो रहा है। दैट रेट इंडिकेट विद द टीवी एंड ऑल अदर media advertisement, whereas the yellow bar indicates the digital ad recovery rate। तो ये आप देख सकते हैं, चाहे वो टीवी या टेलीविजन एड हो या डिजिटल एड हो, मंथली सारे ही एड या एड कंपनीज में रिवाइवल रजिस्टर हो रहा है। तो इट्स अ गुड साइन फॉर इंडियन इकोनॉमी एंड इट्स अ गुड साइन फॉर बिजनेस environment as well। That's all for today, students। These are the references, and if you want lecture PDF, you can join my Telegram channel and you can follow me on Twitter and ResearchGate। If you have any query and suggestion, please write on comment section below, and do not forget to like, share and subscribe। Thank you।